Assalamu alaikum, Momna. Thank you so much for joining the session. वालेकुम अस्सलाम उमर कैसे हैं आप? I'm good. I'm good. I'm pretty much sure a lot of people know about you on LinkedIn, but just for the audience, if you can share me about yourself, क्या कर रही हैं आजकल, how's everything? Well, so right after my graduation, I started off with an Australian content marketing agency. So since then, I've been working with them, or roughly around 3 years हो जाएंगे for me to work remotely for that agency. So I've grown up from you can say a junior level to a senior post within that company itself, and now managing a big number of people under me. Back then, I was taking care of the social media managers as the graphic designer team, and now I've moved ahead towards taking care of the marketing side of the business. For sure. I'm pretty much sure now, before we move towards our conversation, I wanted to discuss the content creation. Nowadays, it's becoming a lot. A lot of people are now on LinkedIn. A lot of people are on different platforms, and they are producing content. The thing that I wanted to start our conversation with is AI and its usage. So nowadays, what we are seeing is we are seeing a lot of people using AI to create content. Just for the audience, you tell me how it usually affects when it comes to the overall growth of a well-known brand. ठीक है, अब now you are working in an Australian market, so you know कि यार वहाँ पे चीज़ें काफ़ी तेज़ होती हैं, and people usually have much better understanding of AI and things related to that. So how this AI thing is helping around in the content field, is it something that is taken care of in a positive way, or हम पाकिस्तानियों की तरह अभी भी ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा चल रहा है कि some people are like liking it, some people are don't liking it. What's the overall scenario regarding to AI in your point of view? So within the niche that I'm working in, AI does play a good amount of role within that. For example, AI generated content पे हम completely rely नहीं कर सकते क्योंकि उसकी एक शॉर्टकमिंग्स हैं क्योंकि एआई के ऊपर कंप्लीटली हम रिलाई नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी रिसेंट ये जो हमारे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स आते हैं एआई के एआई पे पिक्चर आप अपनी ह्यूमनाइज़्ड पिक्चर डालते हैं एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्टूनिश फॉर्म। तो उसमें भी इट्स अनेबल टू कंप्लीटली कन्वर्ट इट करेक्टली। कभी आपकी आईज़ मिसिंग है, कहीं पे फिंगर्स मिसिंग है, कहीं पे लाइक वी कैन नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन इट। बट जिस नीश में मैं काम करती हूँ जो कि रेस्टोरेंट मार्केटिंग नीश है, तो उसके अंदर इट डज़ प्ले अ गुड अमाउंट ऑफ रोल। जैसे वी कैन प्ले अराउंड विद ड्रिंक्स, वी कैन प्ले मेक इट टर्न इट इनटू अ मोशन ग्राफिक इटसेल्फ। सो कुछ वेरिएशन हमें मिल सकती है, बट इट ऑलवेज़ कम्स डाउन ऑन टू द फैक्ट कि हमें बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ना वर्किंग करनी पड़ती है, बैक एंड फोर्थ प्रॉम्प्ट्स दे के एंड देन द फाइनल पिक्चर इज़ विजिबल। सो इट्स नॉट लाइक इट्स अ हैसल फ्री थिंग। इट डज़ रिक्वायर अ लॉट ऑफ हसल्स, बट द कंटेंट इटसेल्फ वो बहुत अच्छा निकलता है उसमें से। बट वो आपके एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि हाउ गुड यू आर इन गिविंग द प्रॉम्प्ट्स इटसेल्फ एंड कितना अच्छे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं व्हाट यू एक्चुअली रिक्वायर फ्रॉम एआई। क्योंकि द मोर डिस्क्रिप्टिव यू आर, द मोर you can say clues are there for AI to convert it into content itself. Totally agree. It's a no, मतलब प्रॉपर तरीके से सही है कि AI it's all about how you gonna pursue it. Hmm. इसके बाद let's get back to few things like what I see is you like discuss about your education. ठीक है, you have done your bachelor's in English, and I'm pretty much sure a lot of people who are doing graduation in a specific language like mathematics, English, they usually try to be more towards the education field. Like for example, what I see is a lot of people doing English, and they end off teaching in universities in any subject or something like that. So how was your overall experience like from where you started, why you started English, then you 360 shift to marketing in your MBA, and now you are doing something that is totally different. The main reason of discussing this is just to have an idea, because a lot of people think if you are doing a degree in something, then you need to be working in that field only.
You can't change your field. I'm pretty much sure a lot of students are like that पाकिस्तान में भी, जो कि ये सोचते हैं कि ठीक है यार, हमने इतनी परसेंटेज ली है, हमने इस चीज़ में ग्रेजुएशन करी और हम इसी चीज़ में एक्सप्लोर करेंगे। But what I'm seeing for last 3-4 years, there are a lot of people who are trying to explore in different fields, Mhm. specifically making agencies, working for agencies, or maybe trying to sell any services. So, how was your overall decision? Why you started on English? Why you shifted to MBA? How this overall experience worked for you, and what's your say on it? Okay, so quite a thing to discuss. So the thing is, when I did my bachelor's, I wasn't actually invested in English that much. क्योंकि एक तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं विद इन यू कैन से द स्टडीज ओवरऑल जो भी पाकिस्तान में नीशेस अवेलेबल हैं डिफरेंट या डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं उनका ना कोई ज़्यादा फ्यूचर नहीं है Hmm. ठीक। उसमें ब बेसिकली वो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो कि स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है? इसमें उर्दू आ जाएगी, इस्लामियात आ जाएगी और हाँ, इस्लामियात में बहुत ज़्यादा आगे भी काफ़ी फ़ील्ड्स वगैरह हैं वेयर वी कैन जंप ऑन टू। बट केमिस्ट्री, फिज़िक्स दीज़ आर नॉट दोज़ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कि इससे ऑफ़िस जॉब मिलेगी आपको। इससे आपको हार्डली या तो आप यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लग जाएँगे या आप किसी स्कूल में टीचर लग जाएँगे। बट दैट वाज़ नॉट समवेयर आई फाउंड माई सेल्फ कंफर्टेबल विद 'cause मुझे वो मेरा वो टेम्परामेंट नहीं था कि मैं किसी स्कूल को सर्व करूँगी दैट्स द एंड ऑफ होना। वेयर एल्स यू कुड फाइंड योरसेल्फ आप एक स्कूल में एक जूनियर लेवल पे टीचर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल बाद आप सीनियर लेवल में टीचर हो जाएँगे, व्हाट एल्स? ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रिंसिपल बन जाएँगे, वो भी एट द एंड ऑफ योर डिग्रीज़ या एट द एंड ऑफ योर करियर। तो there was not much happening within that whole field and that was not somewhere I found comfortable with मैं अपने फ्यूचर के हवाले से उस चीज़ पे ना सेट नहीं थी। आई डू रिस्पेक्ट जिन लोगों की ये सोच है और जो स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। अच्छी चीज़ है, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू से या मेंशन बट इट इज़ समथिंग कि मैं चाहती कि हमें कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए। दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो उससे मैंने क्या किया कि मैंने क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर में ये जो पाकिस्तानी एजुकेशन कल्चर है, जो हमारा इंडस्ट्री है सारी, बहुत अंडरपेड टीचर्स हैं और बहुत बुरे तरीके से उससे काम करवाया जाता है। आई हैव डन सम इंटर्नशिप्स और मेरा उनसे यही एक था कि लाइक टीचर्स जो हैं बहुत अंडरपेड हैं। यानी आपको एक पूरा ग्रेजुएट एक बंदा मिल रहा है, चाहे पोजीशन होल्डर है, नहीं है, दैट्स टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन, बट दे आर इन्वेस्टिंग सो मच एनर्जी इनटू द चिल्ड्रन और उसके बाद उसको एक एक बच्चे की फीस से कम उसको तनख्वाह मिल रही है। दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन आपके टीचर की तनख्वाह आपके बच्चे उस जिस बच्चे को पढ़ा रही है उसकी फीस ज़्यादा है। Hmm. लाइक बड़े स्कूल्स में भी यही क कल्चर है। आई वाज़ नॉट सैटिस्फाइड विद इट। तो मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था फ्रॉम प्री प्ले इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म और जब मैंने स्टार्ट किया था तब इतना सैचुरेटेड नहीं था एंड फ्रॉम देयर आई गॉट सो मच एक्सपोजर मैंने इतनी इतनी डिफरेंट तरह की नेशनैलिटीज़ को ऑनलाइन पढ़ाया फ्रॉम यू कैन से चाइनीज़ पीपल अफ़गानी पीपल पाकिस्तानी पीपल एज़ वेल टर्किश पीपल लाइक बहुत ज़्यादा नेशनैलिटीज़ थी यानी उन्हें कुवैतियों को पढ़ाया था, कतर बेस्ड लड़कों को पढ़ाया था। यानी देयर आर पीपल हू आर फाइंडिंग यू कैन से अ टीचर हू कुड टीच देम हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन बिज़नेस टर्म्स, ठीक है? उन ऑफ़िस में किस तरीके से लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी आई रिमेंबर वन ऑफ माय स्टूडेंट्स उनकी मैनेजमेंट एकदम से ब्रिटिश ने टेक ओवर कर दी थी। यानी उनकी कंपनी के पहले सऊदी थे ओनर्स एंड देन दे शिफ्टेड देयर ओनरशिप टू ब्रिटेन्स। अब सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर इंग्लिश जबकि उनकी बेसिक लैंग्वेज थी अरेबिक और उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। सो देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर हु वांट टू लर्न इंग्लिश। सो आई टॉट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज to multiple different you can say age groups. I have got you can say children of 6 years of age and to a range of like 60-year-old uncle as well. Hmm. So I then discovered that there's so much within this field itself और ये जो हमारी एजुकेशन के अंदर जो कन्फाइंड फील्ड्स हैं ना वो इस तरीके से अपने आप को एक्सपोजर दे सकती हैं तो आई फाउंड सो मेनी यू कैन से डिफरेंट पीपल मेड सो मेनी डिफरेंट कनेक्शंस आउट देयर
और उससे मेरा काफ़ी ज़्यादा जो था ना, जिसे कह सकते हैं एक्सपोज़र, कॉन्फिडेंस विदिन माय ओन फ़ील्ड वो बढ़ा। क्योंकि पहले व्हेन आई वाज़ जस्ट डूइंग बैचलर्स इन इंग्लिश मेरा वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि इस फ़ील्ड से मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती। बट देन आई एक्सप्लोर्ड अनदर एवेन्यू, तो उससे पता चला कि दिस इज़ अ वेरी बिग मार्केट टू टैप इनटू। आप इंटरनेशनली आप टीचर रिकॉग्नाइज़ हो सकते हो ज़्यादा, आप बेशक लोकली इतना अर्न ना करो, बट आप वही चीज़ अगर इंटरनेशनल वो सर्विस दे रहे हो, यू कुड मल्टीप्लाई योर अर्निंग्स टू लाइक 5 टाइम्स और 6 टाइम्स विदिन द इंटरनेशनल मार्केट। तो Then I think everything is going good. You start loving it. This is why you. Uh, I totally understand. I totally understand your point that education system in Pakistan is a bit tricky. Azad, to be very honest, it's not about on a level of schooling. It's also about the leveling of college या university की भी बात की Yes. जाए. But I think every job has a perk and benefit. What I see is teaching is the only field जिसमें you can think of doing something else simultaneously, because जी। if you're teaching somewhere on an hourly basis or हुँ, not हुँ। an hourly basis, अगर स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं, so after one, after two, you will be free for your entire day. So it's like 5-6 hours a day and then you will be free. आई एम सो सॉरी टू कट यू इन। स्कूल सिस्टम 8 बजे से पहले जो है ना, वो आपको घर जाने ही नहीं देंगे। आप मैक्सिमम चलो 3 बजे तक। मतलब फिर भी अगर मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, so now now वेरी मच टाइम। so so what I see is, अगर मैं इसकी छोटी सी बात बताऊं तो ऐसा था कि अ, आज से 5-6 साल पहले अगर हुँ, मैं बात करूँ, लड़कियों के लिए व्हाइट कॉलर जॉब होती थी टीचिंग। इट्स अ वेरी इज़्ज़तदार जॉब लड़कियों के जी। लिए कि भाई कोई मसला रिप्यूटेबल है, कोई मसला नहीं है। माँ-बाप भी जो है एग्री थे इस चीज़ से कि ठीक है यार, टीचिंग इज़ अ वेरी गुड फील्ड और आपको लेट नाइट नहीं करना, मैक्सिमम भी आप 4-5 बजे तक चाहे उससे पहले-पहले अगर आ जाओगे तो आपको मसला नहीं, ठीक है। So, your story had a conflict कि हर चीज़ सही थी, you are teaching a lot of people, you are teaching a lot of nationalities, you are getting, I'm pretty much sure you're getting paid a very decent amount. Then why you switch to a field that is totally 360 shift? क्योंकि teaching and marketing is not even close to each other. नॉट इवन क्लोज टू ईच अदर। And मेरा ये था ऑलवेज़ सॉरी टू कट यू, बट ये है कि मेरा मैंने उसको हमेशा साइड हसल ही लेके चली थी। उसको मैं आई नेवर रियली कन्फाइन्ड माय सेल्फ टू इट, क्योंकि उसमें कोई हायरार्की नहीं है। यू आर जस्ट फ्रीलांसिंग, स्टूडेंट आ गया, पढ़ा दिया, गुड अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी टू स्पेंड ऑन टू। बट कोई ग्रोथ नहीं है आपकी। चलो 4 रिव्यूज़ की जगह 15 रिव्यूज़ आ जाएँगे, बट वही आप उस लेवल पे ही हो ना। आप उससे आगे नहीं जा रहे। इट्स जस्ट लाइक अ फ्रीलांस थिंग, यू गेट स्टूडेंट्स हू लाइक टीच, बट मज़ा भी आ रहा है, सब कुछ ठीक है। But I just wanted to look for some hierarchy, somewhere I could meet new people often and make new connections as well. But a big part in my story is that I wanted to go and pursue my master's degree, और मुझे उसके लिए Erasmus Mundus की scholarship partially मिल भी गई थी। बट क्योंकि उस टाइम कोविड आ गया था, तो जिस वजह से मैं जा नहीं सकी। सो आई वाज़ अप्लाइड इन चिल्ड्रंस लिटरेचर, मीडिया एंड कल्चर का प्रोग्राम था यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो का। सो आई गॉट 60% स्कॉलरशिप ऑफ फ्रॉम देम, बट 40% आई हैड टू पे फ्रॉम माय पॉकेट। बट स्टिल पाउंड्स की आपको कीमत का अंदाज़ा है, पाउंड्स आर नॉट एन अफोर्डेबल करेंसी फॉर पाकिस्तानी पीपल। तो मैंने सोचा कि अगर सिर्फ एक सिल्वर मेडल की बेसिस पे मुझे 40% पे करना पड़ रहा है, सो हाउ अबाउट आई गो अहेड एंड पब्लिश सम आर्टिकल्स एंड रिटर्न बैक अगेन अ ईयर अगेन द नेक्स्ट ईयर, और फिर उसके बाद आई कैन ट्राई वंस अगेन एंड गेट 100% स्कॉलरशिप। बट उस टाइम क्योंकि कोविड आ गया, सो एक प्लान ही ड्रॉप हो गया था मेरा। एंड आई वांट इट के पाकिस्तान के अंदर से तो मास्टर्स नहीं करना, अब करें क्या? Hmm. देयर इज़ समथिंग दैट कोई तो ऐसी डिग्री होगी ना जो हर तरह के ग्रेजुएट्स को एक्सेप्ट करती होगी, जिसके लिए कन्फाइंड नहीं होगा कि आपने जो है ज़रूरी है कि आपने उसी सब्जेक्ट में ही बैचलर्स किया। आई फाउंड आउट दैट देयर इज़ एमबीए आउट देयर दैट कैन बी डन, दैट्स डिफरेंट। लेट्स जस्ट एक्सप्लोर दैट। मीनव्हाइल ये कोविड वाला सीन भी खत्म होगा, तो उसके बाद आई विल अप्लाई अगेन। या आई सी व्हाट एल्स आई कैन डू। तो मीनवाइल वो मेरी प्री प्ले पे स्टूडेंट्स वाली चीज़ वो जो साइड हसल वो चलती जा रही थी। आई वाज़ अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी और मैं अपना बड़ा अच्छा पॉकेट मनी अरेंज कर लेती थी। कोई मुझे पैसे उड़ाने में कोई मसला नहीं था। जो एक बैचलर्स में एक बच्चे का होता है कि भई यार
पापा पॉकेट मनी देंगे तो होगा, बट वो नहीं था। अच्छे पैसे आ रहे थे, मैं अपना गुज़ारा खुद बड़ा अच्छा कर रही थी। बट ये था कि मैंने उसको कभी भी मेजर सोर्स ऑफ इनकम नहीं रखा था। तो देन आई जंप्ड इनटू एमबीए, नस्ट में एडमिशन लिया। अच्छा अच्छा था, लाइक नस्ट का माहौल मुझे पहले एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अब एक स्टूडेंट आता है ना, तो उसको वाक़ई में एक डिफरेंस फ़ील होता है। क्योंकि पॉलिश्ड घरों से लोग जब आते हैं, एक एनवायरनमेंट अच्छा सेट होता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये नहीं होता। सो एक ये चीज़ बहुत अच्छी थी, एक्सपोज़र बहुत अच्छा था। बट एक चीज़ जो मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक थी वहाँ पे, क्योंकि मेरा बिल्कुल हर कोई टच नहीं था दूर-दूर तक एमबीए से, बिज़नेस स्टडीज़ से, कुछ भी नहीं पता था। तो जब वो स्टार्ट किया तो तब रियलाइज़ हुआ कि मैंने कहाँ हाथ डाल लिए हैं, यहाँ तो मैं फँस गई। तो वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ कि इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, फाइनेंस भी पढ़ना पड़ेगा। वो कैलकुलेटर जो मैंने 10th क्लास के बाद कभी उठाया नहीं था, वो फाइनेंशियल कैलकुलेटर अलग होता है, वो भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। लाइक वो चीज़ें मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक थी, बट ये है कि समहाउ आई पास्ड, और अल्लाह का शुक्र है मैं पास हो गई थी। मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी, मैं बस पास हुई थी। बट एक चीज़ जो मैंने उस सारी जर्नी में रियलाइज़ की थी ना, वो ये थी कि जो एक कल्चर है ना हमारा, कि रोट लर्निंग, वो अभी भी कंटिन्यूड है, मास्टर्स में हम क्यों ना हो जाए। मुझे याद है आई वाज़ द ओनली वन, या शायद कोई 1-2 और लोग भी होंगे इसके सपोर्टिव, मैं कहती थी ओपन बुक पेपर लें। क्योंकि ओपन बुक पेपर जो है वो वाक़ई में मुश्किल होता है, सोच के देखना पड़ता है, और दैट वाज़ समथिंग आई लुक्ड अप टू। मुझसे वो रोट लर्निंग होती नहीं थी, ना मुझे कभी कोई चीज़ें याद होती थी, तो आई वाज़ ऑलवेज़ स्ट्रगलिंग। तो आई रिमेंबर जब मैंने ये चीज़ टीचर्स को कही, तो एक टीचर ने मिड टर्म के पेपर में हमें ओपन बुक पेपर दे दिया, और वो वाक़ई में पेपर करने में मज़ा आया, क्योंकि हमें सोचना पड़ रहा था कि इसका आंसर क्या लिखें। यू हैड द एंटायर बुक इन फ्रंट ऑफ यू, डू व्हाटएवर यू वांट, आप बेशक पूरी लाइब्रेरी लेकर आ जाओ, नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप यू। बट द पेपर इज़ नॉट गोइंग टू बी कि फलाने की डेफिनिशन बता दो, या ये एमसीक्यू सॉल्व कर दो, या ये न्यूमेरिकल का आंसर लिख दो। दैट्स टोटली समथिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। आपने स्ट्रेटेजाइज़ करना है। तो बट वो एक ही पेपर हुआ हमारा। उसके बाद जब मैंने फाइनल में दोबारा टीचर को कहा, तो टीचर वाज़ हैप्पी कि ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बना देंगे, आप सॉल्व करने वाले बनो। बट एवरीवन वाज़ नॉट हैप्पी अबाउट इट। वो मुझे एकदम से शॉक लगा, यार आप घर जाओ, आराम से सो, और अगले दिन आपने आके पेपर देना है। पूरा बुक्स जो मर्ज़ी आप उठा के लेके आना चाहते हो, लेके आ जाओ। आपने अपने दिमाग से पेपर सॉल्व करना है। यहाँ कोई किताब नहीं काम आएगी। जो आपने पढ़ा, जो समझा है, वो अप्लाई कैसे करना है, दैट इज़ समथिंग जो हम एक ओपन बुक पेपर में करते हैं। बट यहाँ वहाँ पर ये चीज़ जो थी, मैंने देखा कि इतनी नॉर्मलाइज़ नहीं है, और फिर लाइक वही रोट लर्निंग वाला सिस्टम। और पता नहीं क्यों लोग ये समझते हैं आपने एमबीए कर लिया तो आप बिज़नेसमैन बन जाओगे, आप बिज़नेस वूमन बन जाओगे, तो ऐसा भी कोई सीन नहीं है, कोई बिज़नेसमैन, बिज़नेस वूमन नहीं बनता। चलें 10% पॉपुलेशन होगी जो चलो अपना एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड पे जाएँगे, बट दैट्स टोटली डिफरेंट, दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरियल डिग्रीज़ अलग हैं, वो एमबीए वाली डिग्रीज़ नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप तो उसके अंदर सिर्फ़ एक सब्जेक्ट होगा, पूरे 4 2 साल के कोर्स में, कोई सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होगा सिर्फ। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम बिकमिंग अ बिज़नेसमैन। You have done your marketing and then you have done your masters, and this corona thing happened, and a lot of companies are coming up with a lot of different मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग एजेंसीज बनना शुरू हो गई कोरोना के अंदर। ऑन साइट बड़ा फेमस हो गई ये चीज़। तो एनी एनी आइडिया इफ दैट कोरोना फेज हेल्प यू इन सच वे टू कम अप इनटू द डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि उस वक्त काफ़ी बूम था। एंड एक छोटी सी चीज़ मैं और ऐड करूंगा कि एमबीए और डिजिटल मार्केटिंग का करीब करीब से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग itself is a very big field and you start exploring it as soon as you start doing it. So, how was your whole journey? How Corona took it and बताती हूँ, कोरोना के दौरान तो सिर्फ स्टडीज़ थी। आई वोंट से कि उसने मेरे डिजिटल मार्केटिंग में टैप इन करने को जो है वो बहुत एड किया, ऐसा कुछ नहीं था। बट ये है कि वो जो रिमोट वर्किंग वाले एक कल्चर सेट हुआ था ना पाकिस्तान के अंदर, जो पहले कोरोना से पहले नहीं था। वो एक कल्चर सेट हो गया था कि देयर आर मल्टीपल कंपनीज़ जो यूएस बेस्ड हैं, यूके बेस्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड हैं, मल्टीपल डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग रिमोटली, और अपने जो स्टाफ है वो आउटसोर्स कर रहे हैं इस डिफरेंट कंट्रीज़ में। और ये एक ट्रेंड कह लें, या एक प्रैक्टिस हो गई थी स्टार्ट।
जिससे काफ़ी ज़्यादा आई वुड से कि फीमेल्स को अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिली हैं। पहले फीमेल्स के पास अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम थी, दे ओनली हैड टू गो टू द ऑफिस टू डू वर्क। बट अब वर्क फ्रॉम होम जो एक वर्ड है ना, वो ऑलमोस्ट हर किसी को समझ आ गया था कि वर्क फ्रॉम होम इज़ अ बिग थिंग। नाउ पीपल मोर स्पेसिफिकली वुमेन आर वर्किंग फ्रॉम होम। एक ये चीज़ थी, दूसरा ये था कि टैपिंग इनटू एजेंसी मैंने बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किया था एंड आई स्टार्टेड ऑफ एज़ अ सोशल मीडिया मैनेजर। और जब सोशल मीडिया को भी मैनेज करना होता है, कहने को तो एक बहुत छोटा-सा एक काम है कि आपने पोस्ट कर देनी है, कैप्शन लिख देनी है, ग्राफ़िक्स बना देने हैं। बट इट्स नॉट जस्ट दैट, इट्स अ होल लॉट ऑफ हसल। आपने बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, आपने उधर जो मैट्रिक्स हैं, उनको स्टडी करना है, ट्रेंड्स को समझना है, हैशटैग्स को समझना है, लाइक देयर इज़ सो मच। और जब मैंने टैप इन किया था इस फील्ड में, तब मुझे अंदाज़ा हुआ था कि यार ये तो किसी ने हमें पढ़ाया ही नहीं। ये तो हमें किसी ने समझाया ही नहीं है कैसे होता है। फिर जब मैंने एड्स वाली साइड को एक्सप्लोर किया, इसमें मैं अपने बॉस को बहुत ज़्यादा जो है एप्रिशिएट करूँगी, बिकॉज़ ही वाज़ द वन हू क्रिएटेड अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर अस टू एक्सप्लोर मोर। तो उनकी वजह से ही हैड दिस एटीट्यूड कि लेट्स जस्ट ट्राई दिस थिंग। तो इफ यू आर अप फॉर इट, लेट्स जस्ट ट्राई इट। आई विल गेट यू द सब्सक्रिप्शन, आप ट्राई करके देखो। या आप ये कुछ न्यू पढ़ना चाहते हो, इसके लिए क्या चाहिए? तो उससे जो है मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना ऐसे सीख ली, जो पाकिस्तानी कल्चर में इतना आसानी से इतने लेवल पे कोई नहीं सिखाता। तो उनकी इस जो है कह सकते हैं हैबिट की वजह से वंस आई स्टार्टेड ऑफ एज़ सोशल मीडिया मैनेजर, फिर मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी टैप इन किया। तो जब मार्केटिंग में टैप इन किया, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट माय सेल्फ। तो वो सब चीज़ें थी जो शायद मुझे किसी ने भी नहीं बताई थी। मैंने खुद से समझा, यूट्यूब पे देख-देख के, कुछ अपने बॉस से समझ-समझ के, एंड देन आई फाइनली अंडरस्टूड कि ये मार्केटिंग होती कैसे है। खुद से, लाइक इट वाज़ टोटली सेल्फ लर्निंग। तो या गाइडेंस से अपने कलीग्स वगैरह से ले के। तो आई रियलाइज़्ड कि ये वो सब कुछ है जो जिसके लिए मुझे मेरी अपनी डिग्री नहीं चाहिए थी। बिकॉज़ दैट इज़ नॉट प्लेइंग एनी रोल इन इट। मेरी डिग्री इज़ जस्ट लाइक अ स्टैम्प फॉर मी, 'cause और जस्ट अ पेपर फॉर मी, बिकॉज़ दिस डिड नॉट हेल्प मी एनीवेयर। मुझे इस मेरी डिग्री ने ये नहीं सिखाया कि मैंने क्लाइंट से किस तरह बात करनी है। मुझे मेरी डिग्री ने ये भी नहीं सिखाया कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग करनी कैसे है। डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक टूल्स क्या होते हैं। मुझे पूरी डिग्री में कहीं पे उन टूल्स के नाम भी नहीं बताते, जो टूल्स मैं अब इतने कैजुअली यूज़ कर रही होती हूँ। यानी अ, मुझे उस पॉइंट पे रियलाइज़ हुआ कि हमारा या तो सिस्टम बहुत आउटडेटेड है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है। उसके अंदर वो अप टू डेट चल ही नहीं रहे। और जो हमारे टीचर्स हैं, शायद उन्होंने भी ये सारी चीज़ें नहीं की। तो जो आप पढ़ाने वाले हैं ना, वो वही लोग हैं जिन्होंने किताबें पढ़-पढ़ के पीएचडी की और फिर वो पढ़ाने आ गए। वहाँ तो वो लोग होने चाहिए थे जिन्होंने बिज़नेस रन किया हो, उन्हें पता हो बिज़नेस रन कैसे होता है, उन्हें पता हो मार्केटिंग होती कैसे है। तो फिर वो अपनी एग्ज़ाम्पल से, अपने बिज़नेस की एग्ज़ाम्पल से जो है वो हमें सिखाते, तो शायद हमें समझ आता। कि एक असेंबली लाइन जो है वो कैसे क्रिएट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक फैक्ट्री में हैं या किधर कहीं पे भी असेंबली लाइन किस तरह से डिज़ाइन हो कि उसके अंदर कितनी ऑटोमेशन उसके अंदर ऐसी आनी चाहिए कि वो कम से कम ह्यूमन रिसोर्सेज़ यूज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा मशीन रिलायंट हो जाए, कम से कम हमारा एरर हो। अब ये चीज़ें सिर्फ़ हम किताबों में अगर पढ़ते रहेंगे तो हमें तो इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे सारे प्रॉब्लम्स उस टाइम पे हम एक्सप्लोर करेंगे, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी शॉर्टकमिंग है। तो वही चीज़ अगर हम मार्केटिंग में अप्लाई कर दें कि हमें अगर किसी ने बताया ही नहीं कि एड रन कैसे होता है। मेटा एड जो है आपने नाम सुन लिया, एड्स मैनेजर में जाके करना क्या है? कैंपेन क्रिएट कैसे होती है? क्रिएट करने के बाद आपने कौन से स्टैट्स को चेक करना है? वो अच्छी है, बुरी है, ये कौन से जो है मैट्रिसेस आपको बताएँगे? अगर ये चीज़ हम पढ़ ही नहीं रहे तो ये तो हम फिर वो उस डिग्री पे तो मुझे ऐसा लगता है कभी-कभार कि हमने पैसे ज़ाया किए। क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ स्टैम्प फॉर अस। इवन तो एक्सपोज़र बहुत अच्छा होता है, मैं ये नहीं कह रही कि ज़रूरत ही नहीं है डिग्रीज़ की। बट हमारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा अपग्रेड होने की ज़रूरत है। क्योंकि हम दुनिया अगर इस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो हम एक अलग डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, हम उधर से आगे बढ़ ही नहीं रहे। I agree on that point that education system needs to be upgraded in a way कि अब जो चीज़ें आ रही हैं इट्स अ डिबेटेबल थिंग आई आई टोटली अंडरस्टैंड द फैक्ट कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई टीचर बिजनेस पढ़ा रहा है और अगर वो इतना अच्छा बिजनेस पढ़ा सकता होता तो उसका अपना खुद का बिजनेस होता ठीक है और अगर उसका खुद का बिजनेस नहीं भी है एंड वाइस वर्सा ही इज अ टीचर और समथिंग लाइक दैट रियल लाइफ
ऑन पेपर और ऑफ पेपर लाइफ बहुत अलग होती है, ठीक है? आप स्ट्रैटेजीज़ बैठ के कितनी ही बना लें, फिर वो डिजिटल मार्केटिंग की हो या वो ऑन साइट हो या ऑफ साइट हो कि भई हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे और ऐसा होगा। दिस इज़ नॉट हाउ मार्केटिंग और दिस इज़ नॉट हाउ एनी फील्ड वर्क्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपके साथ ट्रायल एंड एरर होते हैं, आपको चीज़ें देखनी होती हैं, सिस्टम को अपग्रेड होने का है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होंगी। द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज़ Momna, now you are a mother of, I think, 2 babies? 1 or Alhamdulillah, one. okay, Alhamdulillah, 1. So, now the main point that I wanted to highlight and wanted to discuss is a lot of people think कि ठीक है यार अब आपने अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी है, now you have a baby, just focus on that thing. अपनी पर्सनल लाइफ में ही फोकस करें, प्रोफेशनली कुछ चीज़ों को ग्रो ना करें। I personally believe कि this is a very wrong एस्पेक्ट दैट वी आर सीइंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। ठीक है, मैं देख रहा होता हूँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं, ये पर्सनल पर्सनल भी हो सकता है उनका, लेकिन ऐसा होता है कि आपने 4 साल इन्वेस्ट करे हैं यार किसी चीज़ पे, डिग्री करी है, यू हैव डन योर जॉब फॉर एटलीस्ट अ डे और 2 और फिर एकदम से आप बोलते हैं कि नहीं ठीक है यार, आई एम जस्ट क्लोजिंग एवरीथिंग एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव फिर आपने किसी की सीड ज़ाया करी है। हो सकता है यार कि कोई बंदा उसमें पढ़ के आगे उस चीज़ को एक्सेल कर सकता है। यू आर अ परफेक्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ वर्किंग वर्किंग रिमोट एंड मैनेजिंग योर फैमिली, ठीक है? तो मुझे थोड़ा-सा बताइएगा कि फिर अ लॉट ऑफ पीपल थिंक रिमोट जॉब का मतलब है कि कुछ नहीं करना होता, ठीक है? इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली ये ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान में लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसी बात बताएँ कि यार मैं रिमोट काम कर रहा हूँ, तो बोलते हैं ठीक है यार रिमोट ही तो है, आ जाओ बाहर या ये कर लेते हैं या वो कर लेते हैं। तो हाउ यू आर मैनेजिंग, ठीक है? ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई इफ मोमना इज डूइंग इट देन एनीवन कैन डू दैट, ठीक है? एंड आई पर्सनली बिलीव कि एवरी पर्सन शुड हैव देयर ओन पर्सनालिटी कि भाई आप, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हो आप बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली गेटिंग मनी और इट्स नॉट अबाउट ओनली, इट्स अ पॉइंट राइट नाउ इन पाकिस्तान कि अब ऐसा नहीं है कि भाई एक ही बंदा कमाए और पूरा घर चले। That's also another topic of it. But how this motherhood is all going, किस तरीके से रहा, आपने किस तरीके से मैनेज करा, कि कोई टिप्स देना चाहोगे कि यार how you are doing it? If anyone wants to do it, what are the pointers he or she need to have in mind? I do agree to the point क्योंकि motherhood itself is a big job. You have to take care of a baby 24/7, उसमें कोई छुट्टी भी नहीं है। तो and you are not going to be paid for that. It's your job, you have to do it और वो आपको बाय बर्थ मिली है। तो द थिंग इज़ कि मुझे जो एक चीज़ थोड़ी-सी जिस चीज़ ने मुझे कंफर्टेबल किया था वर द लाइन्स ऑफ माय बॉस क्योंकि आई वाज़ कंसर्न्ड व्हेन आई हैड माय बेबी एंड व्हेन आई वाज़ जॉइनिंग बैक तो मैंने उनसे ये चीज़ रेज़ की कि पहले तो आई वाज़ ईज़ी, मैं जैसे आप सामने कैमरे में आ गई एकदम से नो प्रॉब्लम यू सेड कि ऑनलाइन मीटिंग है तो अब एक छोटे बेबी के साथ हाउ वुड आई मैनेज? सो देयर वाज़ वन थिंग दैट ही मेंशन्ड कि पाकिस्तान में हाउस हेल्प्स इज़ अ कॉमन थिंग। रिलेटिव्स आर अ कॉमन थिंग कि आपके बच्चे को आराम से सँभाल सकते हैं। यू हैव समवन एट लीस्ट और यू कुड फाइंड समवन और इवन यू कुड अफोर्ड समवन टू टेक केयर ऑफ योर बेबी। बट इन लाइक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, यूएसए एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आउट देयर वहाँ आप हाउस हेल्प सपोर्ट नहीं कर सकते। इट्स लाइक अ ड्रीम कि आप हाउस हेल्प या किसी इस तरह की किसी रिसोर्स को मैनेज कर सको। दे डू इट देमसेल्व्स वो जॉब भी करते हैं, वो बच्चों को केयर भी करते हैं, वो पालते-पोसते हैं, ऐसा नहीं है उनके बच्चे नहीं हो रहे, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, उनकी देखभाल सब खुद करते हैं। तो ही मेड श्योर टू मेक मी फील रिलैक्स्ड अबाउट द फैक्ट कि इफ यू हैव अ बेबी इट्स टोटली नॉर्मल। आपकी एक आइंस्टाइन मीटिंग है, यू कैन होल्ड योर बेबी। इफ आप कंफर्टेबल नहीं हो, यू वांट टू स्विच ऑफ द कैमरा, जस्ट मेंशन इट बिफोर द क्लाइंट, लेट देम नो that you have a little one, you need to take care of that. And I'm working. I am over here with the laptop. And I am working over there. But yeah, okay, um, I'm divided. एंड मुझे पहले दिन, दूसरे दिन थोड़ा-सा शायद डिफ़िकल्ट फ़ील हुआ था कि ये मैं कैसे कहूँगी उनको, बट दे वर रियली अंडरस्टैंडिंग क्योंकि उनका वो नॉर्मल कल्चर है। दे वर्क एंड दे टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़ ऑल टुगेदर तो उनके लिए ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी, तो मेरे लिए ये एबनॉर्मल थी क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर में ये एक अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती। अब हालाँकि ऑफ़िसेज़ में डे केयर्स ओपन हो रहे हैं,
सो दैट फीमेल्स कैन ईज़िली वर्क, वो अपने बच्चे वहाँ पे देखभाल कर सकते हैं। बट फिर भी एक थोड़ी-सी टेंशन होती है कि दे कैन नॉट जस्ट मूव आउट ऑफ देयर चेयर फ्रॉम द ऑफिस एंड गो टू द डे केयर टू सी देयर चाइल्ड। बिकॉज़ एक माँ है, माँ को जब तक अपना बच्चा नहीं वो हर वक़्त देखती रहेगी, वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं करेगी। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं उसके अंदर आएगा। आई डू हैव अ बेबी ऑलवेज़ विद मी। बट ये जो कुछ लाइन्स जो मेरे बॉस ने मुझे कही थी व्हेन आई वाज़ जॉइनिंग दैट प्लेड अ ह्यूज रोल फॉर माय कॉन्फिडेंस या फॉर मी टू बी रिलैक्स्ड अबाउट कि इट्स ओके। इट्स अ ह्यूमन बीइंग जिसकी मुझे केयर करनी है एंड माय कंपनी या माय पीपल अराउंड मी आर अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्ट एंड द पीपल हूम आई एम वर्किंग विद आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग दैट। तो ये चीज़ आई थिंक अगर हमारे कल्चर में इम्प्लीमेंट हो जाए, ये मैंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस मैंने ऑब्जर्व किया था। अ, जब लाइक व्हेन आई जॉइन्ड बैक आफ्टर माय मैटरनिटी, क्योंकि ये चीज़ पाकिस्तान में इतनी नॉर्मल नहीं है। आई सी पीपल कंप्लेनिंग के हमारे बॉस या हमारे कलीग्स बहुत एनॉय होते हैं कि हमारा बच्चा है बीच में, हर वक़्त अपने बच्चे की बात कर रही है या हर वक़्त अपने बच्चे के बारे में परेशान है। ये काम कैसे करेगी? लाइक शी इज़ टू डिवाइडेड टू वर्क। बट शायद आप कहते हैं ना कि आप अगर किसी इंसान से आपने काम करवाना है तो उसके पेन पॉइंट को एड्रेस कर दो, वो खुद ही आपको काम करके दे देगा। मेरा ये बिगेस्ट पेन पॉइंट था। ही एड्रेस्ड दैट, ही मेड श्योर दैट आई एम रिलैक्स्ड अबाउट इट। And the moment I started saying these words to my clients as well as while I was in meetings as well, तो मुझे वो एक वेलकमिंग जो एटीट्यूड था ना सामने से वो जब मिला तो आई वाज़ हैप्पी कि यार ये डिफरेंस है। दीज़ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं रिमोटली काम कर रही हूँ, आई डू हैव अ बेबी टू टेंड टू, अब वो मेरा वेट नहीं कर सकता कि 8 घंटे बाद जो है मैं उसको देखूँगी। I need to look after him as well and I have to take care of the work part as well. I have to be 100% in both domains. वो इसी तरह से हो सकते हैं कि both these domains understand me. तो वो आई थिंक वो जो चीज़ थी ना वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था जो मेरे मेरे केस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस चीज़। Perfect. The last thing that I have in my mind is wanted to discuss is you have been into different stages और आपने वहाँ पे different characters अदा कर लिए. You started your life as a graduation in English, then you shifted to masters, फिर आपने डिजिटल मार्केटिंग भी देखी एंड यू आर डूइंग मदरहुड एंड नाउ यू आर अ फुल पैकेज. ठीक है, द फुल पैकेज कम्स विद अ थिंग कि फुल पैकेज आप, ये मैं इसको इसलिए कंबाइन करके बता रहा हूँ, आपके अंदर सब कुछ हो तब भी आपको एक चीज की बहुत जरूरत होती है, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग. ठीक है, बिकॉज नो वन इज नो कि पाकिस्तान में कोई लड़की मोमना बैठी हुई है जो इतना स्किलफुल है, लेट्स हायर हर और लेट्स वर्क विद हर. ठीक है, यू नीड टू कम अप विद अ प्लान कि आप अपना आउटरीच किस तरीके से बढ़ाते हैं. ठीक है, देयर आर टाइम्स जहाँ पे लोग बड़े लकी होते हैं कि उनको जॉब्स जो है वो अच्छे तरीके से लैंड हो जाती हैं. वो कम मेहनत करके, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी बंदा बगैर मेहनत के करता है, लेकिन हाँ कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, बट दैट्स द सेम थिंग व्हाट योर सिनेरियो ऑन द पर्सनल ब्रांडिंग. ठीक है, क्योंकि जब आप डिजिटल मार्केटिंग में आते हो तो आपको पता चलता है कि ठीक है यार, मैं जो भी चीज़ चाहता हूँ मैं बेच सकता हूँ, बट मैं इंडिविजुअली भी एक एक अपना ब्रांड बनाता हूँ. क्योंकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन पाकिस्तान हायरिंग मैनेजर्स डायरेक्ट हायर नहीं कर रहे होते, बहुत कम चांसेस होते हैं. हाँ ठीक है, कोई जानने वाला होता है वो कहता है यार मुझे ये पोजीशन चाहिए एंड वाइस वर्सा, बट व्हेन यू स्टार्ट शिफ्टिंग टू फ्रॉम एजेंसी टुवर्ड्स एमएनसी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एचआर मैनेजर्स ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पर्सनली जानता हो. जी, जी। ठीक है, और प्रोफाइल। वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने आप की पर्सनैलिटी किस तरीके से शोकेस कराते हैं. ठीक है, लिंक्डइन इज़ प्लेइंग अ वेरी बिग पार्ट इन पाकिस्तान. वो अलग बात है कि पाकिस्तानी हाथ हाथ और पाँव दोनों का ज़ोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से उसको टिकटॉक या इंस्टाग्राम या शादी.com बना दें. But we still have a very professional platform. I see a lot of women coming up, making content, growing their own personal branding, try to sell services related to digital marketing, related to branding. So, how was your overall experience when it comes to LinkedIn? Do you think this is something that is like the priority right now? क्योंकि यूनिवर्सिटीज के अंदर what I see, there is no
बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या बहुत कम ऐसे टीचर्स होंगे जिनको इसकी इम्पोर्टेंस पता है, क्योंकि आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो, आपकी कितनी भी अच्छी सीजीपीए क्यों ना हो, किसी भी कंपनी को ख्वाब में नहीं पता चलेगा कि इस एरिया के अंदर ये बच्चा या ये बच्ची इतना अच्छा टैलेंटेड है, तो जाके इसको ले लेते हैं। एंड दूसरी पॉइंट ये भी होता है कि यू वांट अ जॉब। कंपनीज़ जब ओपनिंग खोलती हैं, तो कंपनीज़ के पास वैसे ही हज़ारों रेज़्यूमेज़ आ रही होती हैं। तो आप उसको हुँ। किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो? हाउ वाज़ योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? किस तरीके से रहा? एनी पॉइंटर्स ऑन दैट? That would be the final thing that I wanted to discuss. Then you can go to a baby. I'm so sorry that I'm disturbing you that much. No, the thing is कि वो उसमें ऐसे मैंने कोई ख़ास शौक वग़ैरह नहीं था, बट ये था कि प्रोफ़ाइल शुरू से थी लिंक्डइन में, बट एक पॉइंट आया व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइज़िंग कि नहीं, इट्स नॉट जस्ट अ प्रोफ़ाइल, इट्स अ होल यू कैन से वेलकम पैकेज फॉर एनीवन लुकिंग एट योर हिस्ट्री, इट्स योर प्रोफ़ेशनल हिस्ट्री, एज़ मच एज़ यू कैन हाइलाइट इट, इट्स बेस्ट फॉर यू। तो वो चीज़ जब थोड़ी बहुत अंडरस्टैंड की, तो आहिस्ता-आहिस्ता आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस लिंक्डइन प्रोफाइलिंग इटसेल्फ, क्योंकि इट्स आल्सो पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। लिंक्डइन को आप सोशल मीडिया से अलग नहीं कर सकते। जब सोशल मीडिया कंटेंट मार्केटिंग में मैं खुद थी, तो फिर लाइक आई रियलाइज़ कंपनीज़ की जब हम सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उनको ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। तो व्हाई शुड आई नॉट टैप इनटू माय सेल्फ एज़ वेल? तो वहाँ से लाइक आई स्टार्टेड ऑफ लाइक एक्टिवली यूजिंग इन लिंक्डइन एज़ वेल, थोड़ी बहुत स्क्रॉलिंग, थोड़ा बहुत से चेक करते रहे उसके जिससे, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया में आते हैं, तो इवन इफ आई वुड से कि इवन दो आई एम आई एम इनटू सोशल मीडिया मार्केटिंग, बट ये है कि मैं उतनी ही अपनी लाइफ प्राइवेट रखती हूँ, क्योंकि इट डजंट मीन कि यू शुड देन योरसेल्फ बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। तो बट ये है कि लिंक्डइन इज़ अ वेरी suitable platform where you could showcase your skills and your achievements in the most professional way possible, and tap into not only local and industry, you can also tap into the international one. आपको इंटरनेशनल रिक्रूटर्स भी हायर कर सकते हैं। आपको इट्स अ लॉट ऑफ देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। अब लिंक्डइन इज एन ओपन मार्केट फॉर एवरीवन, इट्स नॉट लाइक अ पेड टूल। आई जस्ट थिंक कि अगर तो कुछ अर्से बाद लिंक्डइन ने अपनी सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दी, तो आधी आवाम तो उसमें से ऐसे ही स्क्रैप आउट हो जाएगी, क्योंकि लिंक्डइन इज़ ओपन फॉर एवरीवन, और वाक़ई में वो एक वाहिद प्लेटफ़ॉर्म है जो अभी तक ठीक चल रहा है। इवन तो थोड़े बहुत लोग करते हैं उसको अभी भी अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, बट या लिंक्डइन इज़ अ गुड प्लेस टू ट्रैवल। Totally agree, totally agree. I think we have covered a lot of things, Mumna. And thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session, and I'm pretty much sure that a lot of people can understand and a lot of people can learn from it. And if they want to have any further discussion, they can reach out to you and stay connected over on your LinkedIn. So thank you so much for your time, Mumna.